تمہارے سانس لینے کی بھی آواز آئی تو میں تمہیں چھت سے نیچے پھینک دوں گا۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ پہلے تو وہ اس شادی پر راضی ہی نہیں تھا، پھر زبردستی دادا سائی نے اسے کاشی کے ساتھ ہنی مون پر بھیج دیا۔ ارتسام بھائی، مجھے… ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا جب ارتسام نے اسے جھٹکے سے اپنے قریب کھینچا۔ جسٹ شٹ اپ، بھائی نہیں ہوں، شوہر ہوں اب تمہارا۔ وہ دھاڑا اور پھر ایک جھٹکے سے اسے پیچھے پھینکا۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کل صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ ایک بار پھر بولی تو ارتسام پتھر ہو گیا۔ وہ تو بھوک کی بہت کچی تھی اور اب تک… دعا کرنی ہے ارتسام، آج تمہارے لیے لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں۔ بس ہم تو خود چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی جلد از جلد ہو جائے تاکہ اس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی کلکاریاں سنائی دیں۔ وہ مسکرا دیا۔ کہنے کو اس کا چوتھا رشتہ تھا جو بہت مشکل سے اسے سمجھ آیا تھا۔ سارے ہی خاندان میں ارتسام کی شادی کی ہر دوسرے شخص کو بہت فکر تھی، کیونکہ ارتسام 35 سال کا ہو چکا تھا لیکن اب تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اول تو وہ کام اور بزنس میں اتنا مصروف رہا کہ ان چیزوں کو اہمیت ہی نہ دی۔ مزاج میں سنجیدگی سی تھی، اور دوسری طرف جتنا سب کو چاو اور شوق تھا اس کی شادی کا، اتنا ہی وہ لڑکیوں کو ریجیکٹ کر دیتا، اور کسی بھی لڑکی پر اس کا دل نہیں بیٹھتا تھا۔ اور اب اللہ اللہ کر کے اس نے کسی لڑکی پر حامی بھری تھی تو وہ آج سب مل کر ارتسام کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہے تھے۔ لڑکی جیسے ہی پسند آ جاتی ہے تو وہ یہ سب طے کر کے جا رہے تھے کہ اس کے ہاتھ میں شگن کے پیسے رکھ کر وہ جلد از جلد نکاح کی تاریخ کا سوچیں گے۔ اور ہوا بھی کچھ ایسے ہی۔ اس کی امی، چچی اور پھپھی تینوں ارتسام کے لیے لڑکی پسند کرنے جا رہے تھے، جبکہ ان کے ساتھ گھر کی سب سے چھوٹی اور اکلوتی لڑکی آنا بھی ان کے ساتھ ہی جا رہی تھی۔ بہت زیادہ خوش تھی وہ ارتسام بھائی کے رشتے کے لیے اور گھر میں ایک اور لڑکی کے آنے پر، کیونکہ اتنے سارے لڑکوں میں سے وہ ایک ہی لڑکی تھی، اور ان سب میں ارتسام سب سے بڑا تھا۔ اس کے بعد جنید تھا، اس کے بعد حیدر اور ہاشم، اور اس کے بعد سب سے چھوٹی آنا تھی۔ گھر کی سب سے چھوٹی لڑکی تھی اور سب سے چہیتی تھی، لیکن ارتسام سے کافی حد تک ڈرتی تھی کیونکہ وہ کافی سختی اور روب اس کے اوپر رکھتا۔ اب اس کے رشتے کی بات جب سے ہوئی تھی تب سے بس وہ مسکرانے لگا تھا، اور وہ حیرانگی سے سب سے کہہ دی کہ کیا ارتسام بھائی بھی مسکراتے ہیں؟ دوسری طرف وہ لوگ انم کو دیکھنے کے لیے آئے، اور ان سب کو ہی انم بہت پیاری لگی۔ انم کو دیکھتے ساتھ ہی ان لوگوں نے انم کے ہاتھ میں شگن کے پیسے رکھے، اور اس کے بعد انہوں نے انم کے والدین سے کہا کہ وہ جلد از جلد نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ارتسام بہت قابل اور بہت اونچے خاندان کا وارث تھا، اسی لیے کسی کو برا لگ سکتا تھا۔ تبھی اس کی ماں نے یہ کہا کہ وہ اس کے والد سے پوچھ کر ان لوگوں کو جواب دیں گی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا جواب ہاں میں ہی ہوگا۔ تبھی وہ خوشی خوشی گھر لوٹے اور سب نے مل کر ارتسام کے منہ میں مٹھائیاں ٹھونسنا شروع کر دی، اور سب نے اس کو مبارکباد دی اور بتایا کہ وہ جلد از جلد دولہا بنے گا۔ سب کے ساتھ ہی مسکرا رہا تھا کیونکہ سب خوش تھے، اسی لیے وہ بھی خوش تھا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اب تو سبھی کہنے لگ گئے تھے کہ ارتسام 35 کے ہو گئے ہو، کب شادی کرو گے؟ اس لیے وہ بھی چاہتا تھا کہ چلو یہ ایک فریضہ ہی صحیح وہ سر انجام دے دے۔ بھلا اس میں کوئی کمی تھی؟ سر سے پاؤں تک کوئی اسے نظر اٹھا کر دیکھتا تو وہ کسی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ اپنے تمام بھائیوں کی نسبت وہ اونچی کھڑی ناک والا ارتسام بہت ہی حسین اور گھر میں سب سے مختلف تھا۔ پھر اس کی سنجیدہ طبیعت اس کو اور بھی منفرد بنا دیتی تھی۔ اس کی ماں نے انم کی اس کو تصویر دکھائی تو اسے انم اپنے لیے سوٹیبل لگی تھی، اسی لیے اس نے انم کے لیے حامی بھر لی۔ اور جیسے ہی انم کے گھر والوں کی طرف سے ہاں ہوئی تو گھر میں جیسے شور و غل پھیل گیا۔ انا تو سب سے زیادہ اچھل رہی تھی کہ اب اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی اس گھر میں موجود ہوگی، جبکہ وہ صرف خود 20 سال کی تھی، اور اس کے بعد اس کے چاہنے کے باوجود بھی کسی چچی نے کوئی لڑکی اس کو نہیں دی تھی۔ اسی وجہ سے وہ اکثر سب سے بدظن رہتی، کیونکہ سب اس کی بات پر ہنستے تھے کہ وہ کیسی باتیں کرتی ہے، جبکہ تو اس کی ماں سمرین اسے بہت زیادہ ڈانٹتی تھی کہ وہ اپنی بڑی چچی انیلا سے ایسی گفتگو نہ کیا کرے۔ لیکن آنا کی اہمیت اس گھر میں سب سے الگ تھی، اور خاص کر وہ سب سے زیادہ منہ چڑی دادا سائیں کی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاری شروع ہوئی۔ منگنی کا کسی نے ذکر نہیں کیا،
डायरेक्ट निकाह पर ही सबकी रजामंदी हुई तो जल्द अज जल्द निकाह का एहतमाम करने का फैसला किया गया। दादा साईं ने अगले 2 हफ्तों के बाद की निकाह की तारीख का ऐलान किया तो सब उस पर रजामंद हो गए, जबकि सबने ये भी कहा कि अभी तैयारी नहीं हुई। लेकिन उन्होंने इस बात को अहमियत नहीं दी कि औरतों की शादी की तैयारियां तो कभी मुकम्मल नहीं होती। उनके आए रोज़ बाजार के चक्कर लगे रहते थे। वो अनम से मिलना चाहती थी, जबकि वो बार बार उसके घर जाती, उसे शॉपिंग दिखाती और अनम भी हल्का हल्का मुस्कुरा देती। उसे बेइर्तिसाम बहुत पसंद था। ऊपर से उनका घराना बहुत ऊंचा था, ऊंचे ख़ानदान वाले लोग थे, अमीर कबीर लोग थे। तभी और भी ज़्यादा उसकी दिलचस्पी उसकी जानिब थी। शादी की मुकम्मल तैयारियां हुई और मेहंदी से 1 रात पहले आना अनम से मिलने के लिए उसके घर गई तो वो उसको बहुत कुछ बता रही थी, जबकि अनम का चेहरा कुछ परेशान परेशान सा था। आना अपनी ही जून में उससे बातें कर रही थी कि अचानक उसकी नज़र उसकी भीगी हुई पलकों पर गई। वो हैरानगी से उसकी जानिब देखने लगी। आपको क्या हुआ? उसने सवाल किया तो अनम ने नफ़ी में सर हिलाया। बस वैसे ही सोच रही हूँ, अम्मा अब्बा को छोड़कर चली जाऊंगी, वो उदासी से बोली, जबकि आना ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, वहाँ जाके आप कौन सा खुश होने वाली हैं? इर्तिसाम भाई कौन सा अच्छे इंसान हैं, इतने खड़ूस हैं, बल्कि आप वहाँ जाकर ज़्यादा उदास हो जाएंगी। हर बात पर सख्ती करते हैं, हर बात पर मुंह बना लेते हैं। उनकी तो इतनी चॉइसेस हैं कि वो तो नाश्ते में भी 6 चीज़ें खाते हैं। सारा दिन काम करवाते हैं वो मुलाजमों से। मुलाजमाएं भी उनसे बहुत ज़्यादा तंग हैं। इर्तिसाम भाई पता नहीं कैसे हैं, मुझे तो बहुत अजीब लगते हैं। सब भाइयों में बहुत अजीब हैं। ऊपर से दादा साईं के ऊपर भी रौब जमाते हैं। जब भी दादा साईं मेरे बारे में बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये अभी बहुत छोटी है, ये अभी बहुत छोटी है और मुझे बाहर नहीं जाने देते। इतने सख्त हैं, मुझे बहुत बुरे लगते हैं। एक ही सांस में वो अनम की आंखों का खुलना नोट ही न कर सकी। अनम का दिल खुश्क हो गया। वो ऐसे देखने लगी जैसे अना ने बहुत बड़ा कोई हादसा उसे सुना दिया हो, जबकि अना जबान दबा गई। उसे एहसास हुआ कि वो गलत बोल गई है। वो नहीं, ऐसा तो नहीं है, मतलब वो बहुत अच्छे हैं और वो बहुत अच्छे से पेश आते हैं। मेरा मतलब ऐसा नहीं था। वो परेशान हो गई। उसने मासूमियत से अनम की तरफ देखा, जबकि अनम ने संजीदगी से उसकी तरफ देखकर एक लंबा सांस खींचा और खड़ी हो गई। अनम भाभी, अब आप सबको बता देंगी ये बात? वैसे आपको अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करने लगी। बहुत अच्छा किया आना, तुमने मुझे पहले ही बता दिया कि वो किस मिजाज के हैं। मैं एक आज़ाद ख्याल लड़की हूँ और मैंने कभी अपने पेरेंट्स की कोई बात बर्दाश्त नहीं की, तो फिर मैं उनके इतने इख्तलाफात कैसे बर्दाश्त करूँगी? और वैसे भी मुझे शादी करनी है, किसी जेल में या किसी कैद में नहीं जाना। तो तुमने अच्छा किया, तुमने मुझे पहले ही बता दिया। वो उठी और कमरे से बाहर निकल गई। आना के हाथ पांव फूल गए कि ये उसने क्या कर दिया था। इर्तिसाम भाई का तो रिश्ता बड़ी मुश्किलों से हुआ था। उन्हें तो कोई लड़की भी बहुत मुश्किल से पसंद आई थी और उसने सारी हकीकत अनम को बता दी थी। अब सब उसका क्या अंजाम करेंगे, और ख़ासकर इर्तिसाम भाई, अगर उन्हें ये बात पता चल गई कि अनम ने उसकी बात पर कुछ किया है या फिर अनम ने अगर शादी से इनकार कर दिया है तो इसका क्या बनेगा? उसकी आंखों से आंसू जमा हो गए। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सुर्ख आंसू थे, जबकि छोटी सी नाक भी लाल हो गई थी और उसके दूध जैसी रंगत में लाली भर गई थी। वो परेशानी से अपने कांपते हाथों को देखने लगी। चाहने के बावजूद भी वो अनम को रोक नहीं पा रही थी कि वो किसी के पास ना जाए और वो इस शादी से इनकार ना करे। और जब वो होश में आई तो जल्दी से उठकर बाहर भागी। उसने अनम की जानिब देखा जो अपने पेरेंट्स से खड़ी कोई बात कर रही थी। अनम भाभी, ऐसा नहीं है, मैंने झूठ बोला था, मैंने तो आपसे मजाक किया था, हम दोनों का तो मजाक चलता है ना। उसने जल्दी से जाकर अनम को रोका। नहीं आना, तुम चुप रहो, मुझे सब समझ आ गई है। शुक्र है खुदा का मुझे पहले पता चल गया। मैं भी कहूँ कि मेरे दिल में इतनी फिक्र किस बात की है। बाबा, मैं ये शादी नहीं करूँगी। इर्तिसाम इतना सख्त इंसान है, वो इतने इख्तलाफात उठाता है, वो इतनी सख्तियाँ करता है। मैं बिल्कुल नहीं करूँगी ये शादी।
اس کے والدین بھی حیرانگی سے انم کو دیکھ رہے تھے، جبکہ انا کے تو رنگ ہی اڑ گئے تھے، چہرہ بالکل پھیکا پڑ گیا تھا۔ اس کا دل کیا کہ یہاں سے بھاگ جائے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے الٹے قدم لیے اور وہاں سے نکل گئی۔ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر وہ گھر لوٹ آئی اور جلدی سے آ کر اپنے کمرے میں گھس گئی کہ وہ کسی کو نظر ہی نہ آئے اور نہ ہی کوئی اس سے یہ سوال کرے کہ انم کے گھر میں کیا ہوا، جبکہ دوسری طرف انم نے صاف انکار کر دیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، ایک چھوٹی سی بچی کی بیکار بات کو تم نے دل سے لگا لیا۔ ارتسام ایک اچھا لڑکا ہے، ہم اس سے ملے ہیں۔ آپ کیا ایک دو ملاقاتوں میں اس کو جان گئے ہیں؟ میں نے اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے اور یہ لڑکی اسی گھر میں رہتی ہے، تو اس نے سچ ہی بتایا۔ مہربانی کر کے آپ مجھے اس جنجال میں نہ پھنسائیں۔ اونچا خاندان ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ مجھے کسی قید میں بھیج دیں گے، کسی اتنے بیکورڈ دماغ کے اس آدمی کے ساتھ مجھے بیاہ دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے میں کس ٹائپ کی لڑکی ہوں، میں نہیں کروں گی شادی۔ آپ میری طرف سے صاف انکار کر دیں۔ انم تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کل مہندی ہے۔ اس کی ماں اس کے قریب آئی۔ تو کیا ہو گیا، مجھے فرق نہیں پڑتا، اور ویسے بھی رشتے جب ٹوٹتے ہیں تو لڑکیوں کو فرق پڑتا ہے، نہ کہ لڑکوں کو۔ تو بہتر ہوگا آپ میری طرف سے انکار کر دیں، مجھے ویسے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے پھول بھی اتار کر پھینک دیے۔ اس کے والدین جانتے تھے کہ وہ کتنی ضدی طبیعت کی ہے، اور وہ جانتے تھے کہ اب کسی صورت بھی اس رشتے کے لیے حامی نہیں بھرے گی۔ ان لوگوں نے بہت سوچ بچار کی اور بہت زیادہ کوشش کی کہ انم کو سمجھائیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا وہ سوچ رہی ہے، اور ایک بچی کی باتوں پر وہ کیسے یقین کر سکتی ہے۔ لیکن انم نے تو جیسے دل میں مان لیا تھا کہ ارتسام بالکل ہو بہو ویسا ہی ہے جیسے آنا نے بتایا، کیونکہ آنا اسی کے گھر میں اس کے ساتھ کتنے عرصے سے رہ رہی تھی۔ اور پھر جب ارتسام کے گھر والوں کو مہندی کی صبح انکار کا پیغام پہنچا تو جیسے ان کے سر پر بم ہی گر گیا۔ انہوں نے وجہ جاننا چاہی تو انم کے والدین نے ان سے مل کر بیٹھ کر بات کرنے کا کہا، جبکہ دادا سائی نے انہیں اپنے گھر بلا لیا۔ یہ انکار ارتسام تک بھی پہنچ چکا تھا اور اس کی انا پر بڑی زور سے لگا تھا کہ وہ کیسے ایک لڑکی اس جیسے انسان کو، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پرفیکٹ سمجھتا تھا، اسے کیسے کوئی لڑکی انکار کر سکتی ہے۔ اور اس نے 100 بار انکار کرتے ہوئے اپنی ماں کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی شادی نہیں کرے گا، بھلے اس میں کسی کی بے عزتی ہو یا کچھ بھی۔ اب وہ انم سے شادی نہیں کرے گا۔ انم کے والدین نے انا کی غلطی کے بارے میں دادا سائیں کے سامنے ذکر کیا تو دادا سائیں سر تھام گئے۔ انہیں انا سے اس قدر بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ انہوں نے انم کے والد کی جانب دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ وہ بس ایک چھوٹی بچی ہے، آپ اس کی باتوں پر اتنی توجہ نہ دیں، دادا سائی نے افسوس سے کہا، جبکہ انم کے والد نے سر ہلایا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ ایک بچی ہے اور اس کی باتوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بات میں اپنی بیٹی کو نہیں سمجھا سکتا۔ میں جانتا ہوں وہ ایک بار جس سے بدگمان ہو جائے، اس کے بعد اس کے ساتھ رہنے کے بارے میں تو کیا، بات کرنے کے بارے میں بھی نہیں سوچتی۔ میں جانتا ہوں یہ میری بیٹی کی خامی ہے، لیکن میں شرمندہ ہوں۔ آپ کے آگے میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہماری طرف سے انکار ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری کوئی بات بری نہیں لگی ہوگی۔ وہ ان سے مل کر باہر نکل گئے۔ باہر ارتسام کھڑا تھا جس نے اپنی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں، جبکہ وہ انا کے کمرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شدید غصے میں اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ انا کو اٹھا کر کہیں پھینک دے۔ جبکہ انا کے والدین کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہیں سمجھ آئی کہ انا کیوں کمرے میں اتنے گھنٹوں سے بند ہے۔ انا کے والد نے اسے بہت ڈانٹا تھا اور کافی سخت الفاظوں میں اسے سنائی تھی، یہاں تک کہ جب وہ اس پر ہاتھ اٹھانے لگے تو سب نے انہیں روک دیا کہ اب جو قسمت میں تھا وہ تو ہو گیا، انا کے اوپر سختی کرنے کا کیا فائدہ۔ جبکہ انا مسلسل روئے جا رہی تھی، اس کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ گھر والوں کے سامنے سر بھی اٹھا پاتی کہ اس کی ذرا سی بے وقوفی نے دیکھو کیا کر دیا تھا۔ جبکہ ارتسام اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ ایک بچی کی باتوں پر انم اسے ریجیکشن کارڈ تھما گئی تھی۔
اس کی انا، اس کی غیرت پر بہت زور سے یہ بات لگی تھی۔ آج تک کسی لڑکی نے اسے ریجیکٹ نہیں کیا تھا، الٹا وہی سب کو ریجیکشن دیتا آ رہا تھا، اور آج ایک لڑکی، ایک بے وقوف لڑکی کی وجہ سے اسے ریجیکشن تھما گئی تھی۔ یہ میری قسمت میں نہیں لکھا تھا، اور نہ ہی یہ میرے نصیب میں تھا۔ یہ آپ لوگوں کی لاڈلی اور پیاری آنا کی وجہ سے ہوا، اور آپ لوگوں نے لاڈ پیار سے اسے اتنا سر پر چڑھا رکھا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتی ہے۔ اور اس کی دھاڑ جیسے ہی لاؤنج میں گونجی، سب کو پتا تھا وہ جائز ہے اور حق پر بول رہا ہے۔ آج میری مہندی ہے، کل میری بارات ہے، اور پرسوں میرا ولیمہ۔ اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں گے کہ میں اپنے حلقہ احباب، اپنے دوستوں میں کیا بات کہوں گا کہ یہ ایک بے وقوف، ایک ارریسپانسبل نانسنس اور ایڈیٹ لڑکی کی وجہ سے میری شادی کینسل ہو گئی، اور مجھے ایک لڑکی ریجیکشن تھما گئی۔ اس کی آواز گونج رہی تھی، اور انا کو لگا کہ وہ دبتی جا رہی ہے۔ دادا سائی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور اسے چپ ہونے کو کہا۔ یہ بہت زیادتی ہے، آپ مجھے اس طرح چپ نہیں کرا سکتے، میں بالکل حق پر بات کہہ رہا ہوں۔ اس لڑکی کا تو میں… وہ اس پر ہاتھ اٹھاتا کہ بیچ میں سب آ گئے۔ انا کے والدین سر جھکائے بیٹھے تھے، وہ جانتے تھے ارتسام کی نیچر کے بارے میں، کہ وہ اپنے آپ کو لے کر بہت زیادہ پوزیسو تھا۔ تبھی 35 سالہ زندگی میں اس نے اپنے ہر قدم کو بڑا پھونک پھونک کر اٹھایا تھا، اور اپنے لیے اپنی ہی جیسی پرفیکٹ لڑکی کا انتخاب کیا تھا، جبکہ ان 35 سالوں میں کتنی ہی بار، کتنی ہی لڑکیوں کے رشتے اس کے لیے اس کے گھر تک آئے تھے، جن کو وہ ریجیکٹ کرتا گیا۔ آج جب خود ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا تو جیسے اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی غیرت اور انا پر بڑا زور کا تھپڑ لگا تھا جو اسے سہا نہیں جا رہا تھا۔ یا تو اب سب آپ لوگ اسے ٹھیک کریں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس نے غصے سے کہا، اور لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ اور جاتے جاتے 1 منٹ کے لیے رک کر اس نے مڑ کر سارے خاندان کی جانب دیکھا۔ ایک ایک شخص پریشان بیٹھا تھا، اور وہ بیچ میں بیٹھی تھی، اور بھی سکڑتی جا رہی تھی اس کے خوف سے۔ مہندی تو میں آج رات ہی کروں گا، اور ہر شخص آئے گا، اور ہر مہمان بھی آئے گا۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ اب کیا آپ ہاتھ پاؤں جوڑیں یا کچھ بھی کریں، جو کرنا ہے آپ لوگوں کی مرضی، میں آج ہی شادی کروں گا۔ وہ یہ کہہ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ دادا سائی نے آنا کی جانب دیکھا، اور وہ بھی دادا سائی کی طرف دیکھ کر بے شمار رو دی۔ اس کے پھوٹ پھوٹ کر رونے پر سب کو اس پر ترس آیا تھا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، مجھے لگا وہ میری دوست ہیں اور میں ان سے کوئی بھی بات کر سکتی ہوں۔ میں اسی وجہ سے انہیں ارتسام بھائی کے بارے میں بتا گئی، لیکن میں نے غلط نہیں کیا تھا، اور نہ ہی میں کچھ غلط کرنا چاہتی تھی، لیکن بہت کچھ غلط ہو گیا۔ دادا سائی مجھے معاف کر دے۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی، جبکہ انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور گہرا سانس بھرا۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم حد سے زیادہ معصوم ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرائے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیوں بھائی ثاقب اپنی انا کو ارتسام کو دو گے؟ ان کے سوال پر سب کی آنکھیں حیرانگی سے پھیل گئیں۔ جنید نے جیسے حیرانگی سے دادا سائیں کی جانب دیکھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارتسام بہت بڑا ہے اور انا صرف 20 سال کی ہے، 15 سال چھوٹی ہے اس سے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شادی کے قابل ہے ماشاءاللہ انا، اور میرے خیال سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے رہیں گے۔ اور ارتسام ابھی وقتی غصے میں ہے، جب اس کا غصہ اتر جائے گا تو وہ چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتا ہے۔ یہ بات آپ سب جانتے ہیں، دادا سائی نے کہا۔ ثاقب تھوڑا سا پریشان ہوئے کیونکہ بیٹی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ہلکی سی شرارت اس کے گلے کا توق بن جائے گی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، لیکن اس وقت کسی نے اس کی نہیں سنی کیونکہ غلطی اسی کی تھی، اور ثاقب صاحب بھی اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ تھے اپنی بیٹی کی وجہ سے۔ تبھی وہ اپنے باپ کے سامنے سر جھکا گئے، جبکہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ انا صرف 20 سال کی ہے جبکہ ارتسام 35 سال کا تھا۔ لیکن انہوں نے اس رشتے کی قبولیت کا اظہار کر کے جیسے اپنے بھائی کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھی تو وہ مطمئن ہو گئے، اور اس رشتے سے ان کے والد صاحب بھی بہت خوش تھے۔
तभी वो भी आमादगी का इजहार करके सबको खुशी दे गए। कम से कम उनकी इज्जत आज उनकी होने वाले फंक्शन में और उनकी गैरत का मामला वो निबट चुका था। जबकि अना बाप को हैरानगी से देखने लगी। उसकी आंखों में बेयकीनी थी और वो उठकर अंदर भाग गई। उसकी माँ खुश थी, कुछ नहीं बोली थी। वो जानती थी कि उनकी बेटी बहुत छोटी है और इर्तिसाम से बेहद डरती है। जबकि दूसरी तरफ इर्तिसाम गाड़ी लेकर घर से निकल चुका था। बिला वजह ही सड़कों पर गुस्से से गाड़ी घुमाते घुमाते जब वो घर लौटा तो तकरीबन शाम हो चुकी थी। उसके बकौल मेहंदी का फंक्शन का सारा सेटअप जो सुबह से मजदूर लगा रहे थे हो रहा था वो हट चुका होगा। वो घर में आया तो उनका घर पूरी आबो ताब से चमक रहा था। उसने बेजारी से इर्द गिर्द देखा और अंदर की जानिब बढ़ गया। अंदर भी सब खवातीन तैयारियों में लगी थी। उसने हैरानगी से ये सारा कुछ देखा। क्या अनम मान गई थी? और अगर वो मान भी जाती तो अब इर्तिसाम उसको इनकार कर देता। वो दादा जान के पास आ गया और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उन्होंने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। मालूम नहीं वो क्या पढ़ रहे थे, लेकिन इर्तिसाम उनकी तस्बीह के रुकने का इंतज़ार करने लगा। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि वो साफ इनकार कर चुका था कि वो अनम से बिल्कुल शादी नहीं करेगा। दादा साईं ने अपनी तस्बीह साइड पर रखी और उसकी जानिब देखा। मैंने तुम्हारा रिश्ता अना से तय कर दिया है। इर्तिसाम के लिए ये शॉकिंग न्यूज़ थी। वो हैरानगी से आंखें फाड़े उनकी जानिब देखने लगा। वो बेवकूफ़, नाअहल, अहमक लड़की आपने मेरे लिए पसंद की? वो गुस्से से बोला। इस वक्त अना से बेहतर तुम्हारे लिए कोई नहीं, और वैसे भी घर की बच्ची है, देखी भाली है, क्या बुराई है? मैं 35 साल का हूं और वो बस 20 साल की। मैंने किसी बच्ची से शादी नहीं करनी, एक मैच्योर लड़की से शादी करना चाहता था मैं, और ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ। तो अब आप उसको मेरे गले में बांध रहे हैं। एक तो इर्तिसाम वो घर की इज्जत है, तमीज से बात करो उसके मुतालिक। वो बोले तो इर्तिसाम मुट्ठियां भींच गया। मैं ये शादी नहीं करूंगा, तुम ये शादी करोगे क्योंकि ये मेरा हुक्म है, उन्होंने सख्ती से कहा। इर्तिसाम की आंखों में देखने लगे और उसकी आंखों में उन्हें बगावत साफ नजर आ रही थी, जबकि दादा साईं अपनी जिद पर अड़े हुए थे। जो फंक्शन हो रहा है होने दो, लेकिन मैं उसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि इसमें मेरी कोई खुशी नहीं। वो ये कहकर दोबारा से जिस तरह आया था उसी तरह घर से बाहर निकल गया। मेहंदी का फंक्शन जैसे तैसे करके हो गया। दुल्हन की तब्दीली पर सबने सवाल ज़रूर उठाए थे, लेकिन वहाँ सब बात संभाल गए और अनम की जगह अना ने उन रस्मों में हिस्सा लिया, बिना इर्तिसाम के। इर्तिसाम की नामौजूदगी उसकी नापसंदीदगी की गवाही थी। अब शर्मिंदगी की बारी बड़े भाई की थी, लेकिन साकिब साहब ने कोई इख्तलाफ नहीं किया और मेहंदी का फंक्शन यूं ही गुजर गया। अगले दिन बारात थी, उसका निकाह था। वो अपनी बेवकूफ़ी में अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार गई थी। किसी और ने तैयार होना था और वो तैयार हो रही थी। सब कुछ किसी और का था, लेकिन वो पहन रही थी। उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। आंसू थे जो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। और जब उसे सुर्ख जोड़ा पहनाकर तैयार किया गया तो दादा जान दरवाज़ा बजाकर कमरे में दाखिल हुए। उसने अपनी आंसुओं से भरी आंखों को उठाया और दादा की तरफ देखा। उनकी आंखों में हजारों शिकवे थे, वो देख सकते थे। वो आए और मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा और सर हिलाने लगे। मेरा ये फैसला गलत साबित नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, लेकिन कोशिश किया करो कि समझदारी से काम लो। आज तुम्हारी नासमझी ने देखो तुम्हें कहाँ लाकर खड़ा किया, लेकिन ये बुरा नहीं था। शायद उसकी किस्मत में तुम ही हो। वो प्यार से उसे समझाने लगे थे, लेकिन अना को कोई बात समझ नहीं आ रही थी। वो एक लफ्ज़ भी ना बोली, ना ही अपने बाप से, ना ही अपनी माँ से, और ना ही घर में किसी और से इख्तलाफ किया था। दूसरी जानिब जुनेद इस बात के खिलाफ था। वो अना को दिल ही दिल में पसंद करता था, लेकिन कभी उस पसंदीदगी का इजहार नहीं किया था। लेकिन अब इर्तिसाम से उसकी शादी होते देखकर उसे अजीब बेचैनी सी थी। और देखते ही देखते वो वक्त भी आ गया जब इर्तिसाम ने अना से निकाह करना था।
वो बहुत गुस्से में ज़बरदस्ती वहाँ बिठाया गया था। निकाह नामे पर एहसान करके साइन करते हुए वो वहाँ से उठकर घर के अंदर चला गया और सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा ज़ोर से खींच कर मारा कि पूरे घर में उस दरवाजे की गूंज गूंज गई। दूसरी तरफ आना उस तजलील पर सर झुकाए बैठी थी। उसने भी निकाहनामे पर साइन करके अपना आप उसे सौंप दिया। सबने उसे मुबारकबाद दी और उसे बेशुमार दुआएं दी। तकरीब का अख्तिताम हुआ और पुप्पो, चच्ची और ताई जान ने मिलकर उसे इर्तिसाम के कमरे की जानिब बढ़ने के लिए कहा। खौफ से उसकी रूह कांप उठी थी। वो सांस रोके इर्तिसाम के कमरे की जानिब कदम उठा रही थी और जब वो दरवाजे पर पहुंची तो कमरा अनम के लिए जैसे फूलों की महक से उठता हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा था। वहाँ की हर चीज़ अनम के लिए सजाई गई थी, लेकिन आना बीच में आ गई थी और इर्तिसाम भी तो उसे पसंद नहीं करता था। निकाह होने के बाद और भी ज़्यादा रोना आ रहा था। वो लोग उसे कमरे में छोड़ गए और इर्तिसाम मालूम नहीं कहाँ था। उस पूरे कमरे में नज़र नहीं आया। उसका सांस घुटने लगा। इर्तिसाम भाई, वो सर थाम कर बैठ गई। सब तुम्हारा किया धरा है ना अना, सब तुमने खुद किया। वो खुद को कोसने लगी थी। उस बुढ़े से शादी करने से बेहतर था किसी गॉड, वो बड़बड़ाने लगी जबकि इर्तिसाम ने ये सारी बातें और उसकी गौहर अफशानी सुन ली थी। इससे बेहतर था जुनैद भाई से ही हो जाती। या फिर क्या ज़रूरत थी आना तुम्हें ये सब बोलने की। भाड़ में जाते इर्तिसाम भाई, भाड़ में जाती अनम, तुम्हें क्या ज़रूरत थी बीच में आने की। अब बैठो इसी जगह पर, उसका लिबास पहनो और उसके मंगेतर को अपना शौहर कहो। मुझसे इतने बड़े हैं, किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। वो अफसुर्दगी से खुद को कोसने दिए जा रही थी जबकि ये सब कुछ पीछे खड़ा इब्तिसाम सुन रहा था। गहरा सांस लेते वो ये सोचकर कि इब्तिसाम के वॉशरूम से निकलने से पहले ही वो सारी चीज़ें बोझ उतार दे, एक तरफ रख दे। उसने जल्दी जल्दी चूड़ियाँ उतारी, लेकिन शीशे में इब्तिसाम का अक्स देखकर एकदम उसके हाथ रुक गए। आंखें पटपटाने लगी। वो इब्तिसाम को सांस रोक के देख रही थी। वो उसके नज़दीक आया। वो शीशे में से ही उसे देख रहा था। गुस्से में ब्रश उठाया, बालों में फेरा और ब्रश फेंक कर बिस्तर पर जाकर लेट गया। क्या मुसीबत है। उसने सारे के सारे फूल उतार कर ज़मीन पर फेंक दिए। अना को तो पहले ही उससे बहुत डर लगता था और अब उस जलाद को मज़ीद सहना था। कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो सारे अंदर के जज्बात अंदर ही अंदर उतार कर सांस खींचती अपना सामान उतार कर वॉशरूम के जाने बढ़ गई। ये चूड़ियों की खन खन लगा रखी है ना, इन्हें उतार कर साइड में रखो। वो ज़रा गुस्से से बोला तो आना एकदम साकित हो गई। उसने बेआवाज़ चूड़ियाँ उतारी और एक तरफ रख दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर वॉशरूम की जानिब गई और वहाँ से लिबास तब्दील करके बाहर आई। उसने देखा वो आंखों पर हाथ रखे लेटा था। उसके साथ लेटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो सोफे पर बैठ गई। उसने अपना हाथ उठाकर उसे घूर कर देखा। शराफत से इधर आओ। आना का दम सा निकल गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैंने कहा चुपचाप इधर आओ। तुम्हारी कोई भी बेकार बात सुनने के मूड में नहीं हूँ। इधर आओ और ये ड्रामेबाजी बंद करो, वो बोला जबकि आना ने फिर नफ़ी में सर हिलाया। ऐसा लगता था उसके आगे तो ज़बान नहीं हिल सकती। अच्छा, यानी मुझे आना पड़ेगा। उसने फिर हुक्म दिया। वो फिर से नफ़ी में सर हिलाती। इससे पहले इब्तिसाम अपनी जगह से उठे, वो जल्दी से भागकर बिस्तर पर आ बैठी। सांस अंदर तक खींचा। लेट जाओ, उसने हुक्म दिया तो आना उसे देखने लगी। हैरानगी आंखों में थी। वो मैं दादा साई के पास चली जाऊं, उसने कहा जबकि इब्तिसाम ने बेजारी से इधर उधर देखा। या तो तुम लेट जाओ वरना ऐसा खींच के थप्पड़ मारूंगा कि तुम्हें जल्दी नींद आ जाएगी। वो गुस्से से भड़का। आना लेट गई, करवट ली और आंखों पर हाथ रखकर रोने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इब्तिसाम की बीवी बन गई है, जबकि वो इतना सब कुछ सुनाती थी। पीठ पीछे जिसकी बुराइयां करती थी,
आज उसी के पहलू में लेटी थी। वो करवट लिए बिना कुछ ऊपर लिए हुए थी, रोने में मसरूफ थी, जबकि एकदम एक भारी सी चीज उसे आकर लगी। ओढ़ लो इसे, और जितना रोना है बेआवाज रोना, तुम्हारी आवाज मेरे कानों को डिस्टर्ब ना करे, उसने कहा और खुद भी करवट ले ली। अना ने कंबल अपने ऊपर खींचा और सोने की कोशिश करने लगी। मालूम नहीं वो सोया था या नहीं, लेकिन फिर भी वो सोने की कोशिश करने लगी थी। अगली सुबह वो घोड़े गधे बेचकर सो रही थी, जबकि उसकी आदत थी। जबकि इर्तिसाम तैयार हो रहा था, वो तैयार होकर मुड़ा तो वो कंबल में लेटी हुई थी। सर झटक कर वो नीचे आ गया और बिना किसी से बोले घर से बाहर जाने लगा। अरे इर्तिसाम, तुम कहाँ जा रहे हो? आओ नाश्ता करो, चच्ची ने कहा तो वो नफी में सर हिला गया। मुझे भूख नहीं है, उसने कहा और काफी रूडली सबको देखकर वहां से चला गया। जबकि दूसरी तरफ आना रो धो रही थी, बिस्तर पर बैठी कि उसकी माँ उसके पास आई और जरा गुस्से से उसे डांटा। वो क्यों रोना डाले बैठी है? अब बड़ी हो जाए, क्योंकि इसकी शादी हो गई है। दूसरी तरफ दादा साईं उन दोनों के लिए हनीमून का सोचे बैठे थे। रात के खाने पर सब इकट्ठे हुए तो दादा साईं ने सबको बताया कि वो उन दोनों को वलीमे के बाद हनीमून पर भेज रहे हैं। आना के मुंह से तो खाना ही उलट गया। ये दादा साईं तो उसके पक्के दुश्मन हो गए थे। ये सब क्या था भला? मुझे नहीं जाना, अचानक सबके सामने कहकर वो वहां से उठकर चली गई। इर्तिसाम का चेहरा सुर्ख पड़ गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। वो खामोशी से खाना खाता रहा, जबकि उन सब के बीच से जुनैद भी बड़ी खामोशी से निकलकर उसके पीछे चला गया। किसी ने इस बात पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि ये सब कुछ उनके घर में आम था। आना सबकी लाडली थी और ज़रा जुनैद के करीब थी। इर्तिसाम से तो हमेशा डरती थी। जुनैद उसके पास आया और उसके साथ झूले पर बैठ गया। इर्तिसाम से शादी नहीं करना चाहती थी, ऐसा ही है ना? उसने कहा तो आना ने उसकी जानिब देखा। ऑफ कोर्स, मैं उस बुढ़े से शादी क्यों करूंगी? जुनैद को हंसी आ गई, लेकिन फिर भी तुम्हारी शादी दादा साईं ने जबरदस्ती करवा दी। क्या कर सकते हैं? अब कुछ भी कर लो। कर तो सब कुछ करते हैं। तुम चाहो तो कुछ भी कह सकती हो उन्हें कह सकती हो कि मैं इर्तिसाम के साथ नहीं रहूंगी या फिर हनीमून पर नहीं जाऊंगी। लेकिन दादा साईं को बुरा लगेगा। तुम कोशिश तो करो, हो सकता है तुम्हारे हक में बात बन जाए। जुनैद सख्त बरहमी से बोला। जुनैद एकदम से सीधा हुआ, इर्तिसाम की जानिब देखा। आना की भी चेहरे का रंग उड़ गया था। इर्तिसाम उसे निहायत गुस्से से घूर रहा था। चलो अंदर, दादा साईं बुला रहे हैं। उसके हुक्म पर जुनैद अंदर चला गया। वो उठी और पीछे कदम लेने लगी, जबकि इर्तिसाम उसी की जानिब कदम उठा रहा था। आइंदा मेरे बारे में किसी से बकवास करने की ज़रूरत नहीं, और अपने दिल में ये बात बिठा कर रखो कि तुम मेरी बीवी हो और किसी से भी कोई बात नहीं करनी। कोई भी तुम्हें आकर कुछ भी बात कहे तो अपनी चोंच को बंद रखना। समझ आई? अब आप मेरे ऊपर इस तरह हुक्म नहीं जमा सकते, मैं बच्ची नहीं हूं, उसने कहा, जबकि इर्तिसाम सर हिलाता सीने पर हाथ बांध गया। अच्छा, तो तुम बच्ची नहीं हो? उसने गौर से अना की जानिब देखा। अना सर हिलाने लगी। जी, मैं बच्ची नहीं हूं। आप इस तरह से मुझे डांटते रहते हैं, आपका कोई हक नहीं बनता। जो मेरे हुकूक है ना, अगर वो तुम्हें समझाने बैठ गया, तुम्हें पता चल जाएगा। तो बेहतर है लोगों की बातों पर तवज्जो देने से तुम्हारा अपना नुकसान होगा। और मेरे बारे में तुम जानती हो कि मैं क्या चीज़ हूं। और हाँ, आइंदा की बात मुझे बुढ़ा मत कहना। ये कहकर वो वहां से पलट गया। बात सुने, अना ने उसे पुकारा। इर्तिसाम ने मुड़कर उसकी जानिब देखा। कुछ देर उसे देखता रहा। वो परेशान परेशान सी उसे ही देख रही थी। वो दादा साईं हनीमून की बात कर रहे हैं, तो आप उन्हें मना कर दें, वो बोली, जबकि इर्तिसाम अभी भी उसकी सूरत देख रहा था। इतना शौक है तो खुद कह दो। वो आगे बढ़ गया। पीछे अना का बस नहीं चला कि उसके सर में कुछ दे मारे। काश वो उसे इतना बड़ा ना होता, उसे उसकी इज्जत भी ना करनी पड़ती। रोने के अलावा कोई चारा नहीं था। वलीमा भी बखैर आफियत तमाम हुआ
और ऐन दादा साईं की ख्वाहिश के साथ वो दोनों नारायण कागान के लिए निकल गए। हाँ, उसे शौक था शुमाली इलाका जात में जाने का, लेकिन इर्तिसाम के साथ कभी भी नहीं। लेकिन अब ये उसकी मजबूरी बन गई थी और मालूम नहीं उसको क्या हो गया था। बार बार उसका हाथ पकड़ता जबकि वो छुड़ाने की कोशिश करती, लेकिन वो उसके शानों पर हाथ रखकर उसे करीब कर लेता। आना के लिए ये सब बहुत मुश्किल था। जब वो होटल के कमरे में पहुंचे तो वह एहतजाज में मुंह फुलाए खड़ी उसे देखने लगी, जबकि वो आइसक्रीम खाने में मसरूफ था। मुझे घूरने का मकसद? उसने संजीदगी से सवाल किया। ये आप क्या बार बार मुझे छू रहे हैं? तुम अपने बाप को फोन करके पूछो कि निकाहनामे पर दस्तखत करने से पहले ये कहा गया था कि तुम्हें छूना नहीं है। आपको तो बिल्कुल बात करने की तमीज नहीं, इसलिए आप मुझे बहुत बुरे। एक्सक्यूज मी। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि उसकी आंखें बाहर को निकली और आना के लफ्ज वहीं रुक गए। मुझसे फ्री ना होना, उसने कहा और आंखें फेर ली। सुकून से अपनी आइसक्रीम मुकम्मल करके बैठ गया, जबकि उसे इतनी भूख लग रही थी। कल से उसने कुछ नहीं खाया था। काश मेरी शादी किसी और से हो जाती। वो फिर से बड़बड़ाने लगी थी। हाँ, जुनैद से हो जाती, लेकिन वो भी तुमसे 7-8 साल बड़ा है। फिर वो बूढ़ा नहीं हुआ? नहीं, आप ज्यादा बूढ़े हैं, ज्यादा खड़ूस हैं। देखो, तमीज से बात करो मुझसे, वरना मैं तुम्हें इस खिड़की से नीचे फेंक दूंगा। पहले तो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी, ऊपर से दादा साईं ने तुम्हें मेरे साथ जबरदस्ती हनीमून पर भेज दिया। अब अपनी चोंच बंद करो, जाकर सो जाओ। वो बेसाख्ता रोने लगी। इब्तिसाम सीने पर हाथ बांधकर खामोशी से उसे देखने लगा, जबकि अना रोते हुए उसे बता रही थी कि वो कल सुबह से भूखी है और उसे बहुत शदीद भूख लग रही है। अच्छा, इब्तिसाम ने गहरा सांस लिया। तो जब मैं खाना खा रहा था तो किस अकड़ में बैठी थी? इब्तिसाम भाई, अब मुझे भूख लग रही है, वो अपने आंसू पोंछती बोली। तो उसे एकदम से उसने खींचा। मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूं, शौहर हूं तुम्हारा, उसने जरा गुस्से से कहा। तो वो सहमी हुई नजर से आंखें पटपटाने लगी। मुझे लगता है तुम्हारे साथ मुझे शौहरों वाला रवैया अख्तियार करना पड़ेगा, फिर तुम्हारी अकल भेजे में ये बात घुसेगी कि मैं कौन हूं। शराफत से मेरे पीछे आओ, खाना खाओ। वो बोला तो वो मुंह बनाकर उसके पीछे पीछे चलने लगी, जबकि इब्तिसाम उसे लिए लॉबी में आया। वहां पर उन दोनों ने डिनर किया। दोनों ने कोई बात नहीं की थी। अना सुकून से खाना खा रही थी और वो इर्द गिर्द बैठे लोगों को देख रही थी। उनके साथ एक कपल बैठा था जो कि एक दूसरे को खाना अपने हाथों से खिला रहा था। अना उन्हें देखकर अजीब से मुंह बनाने लगी। छी, कितने गंदे लोग लग रहे हैं, उसने कहा तो उसकी आवाज़ बाकायदा इतनी ऊंची हो गई कि उन दोनों तक आवाज़ पहुंच गई। खूनख्वार नज़रों से उन दोनों ने देखा तो अना का दम सा निकल गया। इब्तिसाम को रत्ती बराबर परवाह नहीं थी। आपको तमीज़ है? कोई यहाँ बैठा है तो इसका ये मतलब है कि आप अपनी गौर फिशानियाँ इतनी ऊंची आवाज़ से करेंगी, वो लड़का बोला, जबकि इब्तिसाम ने उसे सर्द नज़रों से देखा। अपना काम करो, ज़्यादा बड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं। वो उसे छिड़क कर अना का हाथ पकड़कर वहां से उठ गया, जबकि वो लड़का खामोश हो गया था। आपको किसी से डर नहीं लगता? अना ने उससे सवाल किया। इब्तिसाम जबकि उसके शाने पर हाथ रख गया। वो महसूस नहीं कर सकी। शायद वो बार बार उसके शाने पर हाथ रखता तो वो उसका हाथ हटा देती। इस बारी उसने उसका हाथ नहीं हटाया था। हैरानगी से उसकी तरफ देख रही थी। हाँ, किसी से डर नहीं लगता, उसने भी शाने उचका दिए। दादा साईं से भी नहीं लगता? उसके सवाल पर वो हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, मुझे उनसे भी नहीं लगता। आप बड़े हैं ना, इसलिए आपको किसी से डर नहीं लगता। जो छोटे होते हैं उन्हें सबसे डर लगता है, जैसे मुझे आपसे लगता है। अच्छी बात है, छोटों को छोटा बनकर ही रहना चाहिए। इतनी जो ये तुम्हारी जबान चलाने की आदत है ना, वो तुम्हें नुकसान में डालती है। जैसे कि आज तुम मेरी बीवी बनकर मेरे पहलू में खड़ी हो, जबकि यहाँ पर किसी और ने होना था। आना ने उसे संजीदगी से देखा। उसका हाथ झटका। इब्तिसाम उसके रिएक्शन पर थोड़ा सा हैरान हुआ। तो बस ठीक है,
फिर कर लें उससे शादी, गुस्से से कहकर वो पीछे मुड़ गई। कमरे की चाबी मेरे पास है। वो जरा सा मुस्कुराया और उसने चाबी दिखाई। आना गुस्से से उसके पास आई, चाबी खींची और तन फन करती आगे चलने लगी। इर्तिसाम को हंसी आ गई उसके रवैये पर। वो कुछ देर वहां खड़ा रहा जबकि वो जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो भी ऊपर आ गया। जब वो ऊपर आया तो वो मुंह फुलाए अपने मोबाइल में मालूम नहीं क्या तलाश कर रही थी। जब तुम्हें पता है मेरी शादी अनम से ही होनी थी तो फिर उससे जलने का क्या मकसद? जब आपको पता है जुनैद भाई मुझे पसंद करते थे तो उनसे जलने का क्या मकसद? एक्सक्यूज मी, ये तुम्हें जुनैद का नाम लेकर मुझे जलाने की जरूरत नहीं। वैसे आप जल क्यों रहे हैं? क्योंकि आप तो मुझे पसंद नहीं करते। हाँ, मैं तुम्हें कहाँ पसंद करता हूँ? शक्ल देखी है तुमने अपनी? वो से बच्चों की तरह लड़ रहा था। आना को रोना आने लगा और वो मोबाइल फेंक कर कंबल तान कर बाकायदा रोने लगी। उसके साथ ही लेट गया। दोनों के बीच अब भी फासला था। ये पुलिस सायरन की तरह रोना बंद कर दो, उसने बिलाखिर आजिज आकर कहा, जबकि उसकी सेहत पर कोई असर नहीं हुआ और वो बाकायदा और ऊंची आवाज से रोने लगी। आना जस्ट शट अप। वो उठा और उसके मुंह से कंबल हटाया। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की भी तुम ही हो और आखिरी लड़की भी तुम हो। इस बात पर रोने की जरूरत नहीं कि मुझे किसी अनम की याद आ रही है। वो तो मुझे जहां नजर आएगी मैं उसकी गर्दन न दबा दूं। होती कौन है वो मुझे रिजेक्ट करने वाली, वो भी तुम्हारी बेवकूफ बातों पर। अब रोना बंद करो। कह तो रहा हूं कि तुम ही मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो, तो प्लीज मुझे चैन से सोने दो। वो बोला जबकि अना को उसकी बात पर थोड़ा थोड़ा यकीन आने लगा, क्योंकि वो जानती थी कि इर्तिसाम कभी भी लड़कियों के इर्द गिर्द नहीं मंडलाता था। और अनम की जहां तक बात थी तो वो तो उसकी इज्जत और गैरत का मामला था। वो थोड़ी सी मुतमईन हुई और रोना बंद कर दिया। जबकि इर्तिसाम लेट गया। उसके लेटते ही वो उठकर बैठ गई। उसकी पुश्त को थोड़ी देर घूरती रही। दिल में मालूम नहीं तसल्ली हो गई थी। हालांकि वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। उनकी उम्रों में कितना बड़ा गैप था। अगर वो इर्तिसाम भाई से मोहब्बत करने लग जाए तो ये कितनी अजीब बात होगी। यानी अपने दादा साईं की उम्र के एक आदमी से वो मोहब्बत करे। उसने गहरा सांस लेकर नफी में सर हिलाया। आना, तुम ये बात सोच भी नहीं सकती। वो बड़बड़ाई और फिर लेट गई। इर्तिसाम ने मुड़कर उसको देखा। उसके बड़बड़ाने की और फजूल बोलने की आदत उसे हमेशा ले डूबती थी। अगली सुबह वो हमेशा की तरह जल्दी उठा, तैयार हुआ और बाहर का मौसम देखने लगा। काफ़ी सर्दी थी जबकि वो सुकड़ सिमट रही थी। उसने उसके ऊपर कंबल सीधा किया और सिगरेट मुंह में लगाकर कमरे से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला तकरीबन आधे घंटे बाद आना भी उठ गई। उठते साथ ही उसने इर्तिसाम को देखा। वो वहां मौजूद नहीं था। सुकून का सांस लेकर वो उठी, फ्रेश हुई और कमरे की खिड़की में खड़ी हो गई। वो जानती थी वो कुछ देर बाद आएगा और वो दोनों फिर नाश्ते के लिए चले जाएंगे। वो उसका इंतज़ार करने लगी और अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला तो उसे लगा इर्तिसाम कमरे में दाखिल हुआ है। उसने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि कोई उसके करीब आ रहा है तो वो मुड़ी। कमरे में दो मनचलों को देखकर एकदम उसकी चीख निकल गई थी। इर्तिसाम, वो चिल्लाई, लेकिन इर्तिसाम यहाँ होता तो ज़रूर उसकी मदद करता। कौन है आप लोग और यहाँ क्यों आए हैं मेरे कमरे में? जाएं आप लोग यहाँ से। इर्तिसाम, उस लड़की का मुंह बंद कर, एक ने दूसरे से कहा तो वो उसकी जानिब बढ़ा और तभी कमरे में इर्तिसाम आ गया। गुस्से से उसका पारा हाई हो गया था और अपनी शदीद गलती का भी एहसास हुआ। वो आगे आया और उसने उन दोनों लड़कों को पीटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि होटल की सिक्योरिटी भी आ गई। उन्होंने इर्तिसाम का गुस्सा ठंडा किया और उन दोनों लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि इर्तिसाम ने अना को सीने में भेंच लिया। एकदम जैसे उसे खौफ सा महसूस हुआ था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अना उसके सीने से लगी बुरी तरह रोने लगी। मैं आपको पुकार रही थी, आप नहीं आए।
आप बहुत बुरे हैं, आप बहुत ही बुरे हैं। वो रोते हुए बोल रही थी, जबकि वो उसकी पेशानी को चूम गया। आज उसका भी दिल डर गया था। हाँ, मैं बहुत बुरा हूँ, ये बात हकीकत है। मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत लापरवाह हूँ। बल्कि तुम लापरवाह नहीं, मैं लापरवाह हूँ। मैं कैसे कमरे को लॉक किए बिना जा सकता हूँ? वो बोला, जबकि आना उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी। अरतसाम उसके आंसू पहुँचने लगा। अच्छा, घबराओ नहीं, अब मैं आ गया हूं ना, आइंदा ऐसी लापरवाही नहीं होगी। मैं बहुत डर गई थी, उसने आहिस्तगी से कहा। अरतसाम ने उसकी आंखों में देखा। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, उसने कहा और उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। आना खामोशी से उसे देख रही थी। ये नहीं सोचा था कि तुम भी मुझे अच्छी लगने लगोगी। वो मुस्कुराया तो आना का दिल एकदम धड़कने लगा। छोटी उम्र होने के बायस वो ज्यादा देर इख्तिलाफ नहीं कर सकी थी उससे, और उसका दिल उससे लग गया था। वो मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट को इर्तिसाम ने प्यार से देखा। उसका गाल थपथपाया। तुम्हें भूख लगी है ना? मुझे पता है तुम भूख की बहुत कच्ची हो। पहले हम कुछ खाते हैं, उसके बाद हम अपना असल हनीमून मनाएंगे। वो जैसे ही बोला तो अना का चेहरा एकदम सुर्ख पड़ गया।